आपके अपने चैनल SBR न्यूज 24/7 में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ। पूरी मुल्क के लोगों से गुजारिश करूंगा वो बिल्कुल बल्कि इस मुल्क को चलाने के लिए, जमहूरियत को बाकी रखने के लिए, लोगों की मोहब्बत के लिए जमहूरियत के नाम पर वोट लिया जाता है। मुल्क हमारा 1947 में आजाद हुआ, लेकिन इस मुल्क के कानून को बनाने के लिए, इस मुल्क को आइन को बनाने के लिए जो बड़े मुदब्बिर थे, बड़े मुफक्किर, वो जमात थी जिन्होंने 2 साल से ज्यादा का वक्फा लेकर इस हिंदुस्तान के आइन को। लोग बैठे हुए हैं, यहाँ की आवाज पूरा मुल्क सुन ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜನಗಳ ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಲೀಜಿದ್ರೆ नहीं मालूम होता नहीं प्रॉब्लम क्या करते हैं। इनकी तरफ से कोशिश नहीं की, लेकिन इन्फॉर्मेशन ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಕೋಟಿ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕಂದ್ರು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ। ಹೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ GLR ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 30 ಕೋಟಿ ತಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೃಷಿ ನಗರದಲ್ಲಿ MLA ಮಾಡಿದಿರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡದೇ ಇರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಾವೆಲ್ಲಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕೆಲವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕೆಲವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಸಾಲಿಲ್ಲ। 3 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತು ಈ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ। ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಕಳೆದ್ವಿ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ 30 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಬರೀ ನೀರು GLR ಪಂಪೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಂಕೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದು। ಜನ ನೀರು, ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂದ್ರು, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ। ಹೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ GLR ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ, 30 ಕೋಟಿ ತಂದು ಇಲ್ಲೇ GLR ಪಂಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ 15 ದಿನ ನಾವು ನೀರ್ ಬಿಟ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀನಿ। ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಲೀಜು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ನೀರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಕೋಟಿ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡಿದೀನಿ। ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪೂಜೆಗಳಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರೈನೇಜು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸುಮಾರು ಟ್ಯಾನಿ ರೋಡ್ ಇಂದ ನಾಗವರ್ಗ ಕಡಗನಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ 150 ಕೋಟಿ, ಪೇರಿಯರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ DJಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕಾವಲು ಬೆಳಸಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 50 ಕೋಟಿ, ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಅನುದಾನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। 500 ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳು ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ। ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ। ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನೇಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು, ರೌಡಿಸಮ್ ಇತ್ತು, ನಾನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ। ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನೇನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ। ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ನಿಂತೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೂ ಈಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ। ಈಗ ಮೊದಲ ತರ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಏನ್ ನಿಂತೋಗಿಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ। ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ನಿಜನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ನಾನೇ ನಿಂತೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ। ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಗೌಡ್ರು, ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, IIML ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು। ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ವಾರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಂದು ಸುಮಾರು 2 ಮಸೀದಿ MM ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮಸೀದಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮನೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ। ನಿನ್ನೆ ರ್ಯಾಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸುತ್ತಕೊಂಡು ರ್ಯಾಲಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೊರಟು ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಡೀ
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಟು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು 32-34 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ದು ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಈ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಲ್ಲ, ರಾಜುಗೌಡ್ರು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಬೇಕು, ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರೇ ನನ್ನ ಪರವಾಗೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಜುಗೌಡ್ರ ಪರವಾಗೂ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಈ ಚುನಾವಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕೋರೆ, ಆದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕೀಗ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವರನ್ನ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯರನ್ನ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ ತರ ಬಾಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾರ್ತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಿ ರಾಜುಗೌಡ್ರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. बरोज़े पीर 22 तारीख़ को यानी 22 अप्रैल को मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल बेंगलोर में हमारे शहर के मुक़र्रर उलमाए किराम और तंजीमात के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम तमाम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो लोकसभा का इलेक्शन है, पूरा मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस तरह के हालात हैं, हम तमाम के तमाम देख रहे हैं। हमारी रियासत कर्नाटक में 26 तारीख को इलेक्शन है, बिल्कुल करीब है, 4 दिन का वक्त है। और उसके बाद 7 मई को भी इलेक्शन है। हमारे मुल्क में दीगर रियासतों में भी इलेक्शन है, क्योंकि ये अज़ीम इदारा है और यहाँ पर अज़ीम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ की आवाज़ पूरा मुल्क सुनता है। तो मैं सिर्फ़ रियासत कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को लोगों को से गुजारिश करूँगा कि अभी भी हमारे पास वक्त है। ये मुल्क किसी एक मज़हब का नहीं है बल्कि तमाम मज़ाहिब का ये गुलदस्ता है। जो लोग तकरीबन 10 साल से मज़हब के नाम पर नफ़रत का बाज़ार लगाया हुआ है, उस बाज़ार को ख़त्म करने के लिए हम तमाम को, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, तमाम को मिलकर मोहब्बत के बाज़ार को लाना है, नफ़रत को ख़त्म करना है। हमारी रियासत कर्नाटक में कुछ जगहों पर 26 तारीख को इलेक्शन है, जुमा का दिन है। मैं मसाजिद के खुताबा से, ज़िम्मेदारों से भी ये गुजारिश करूँगा कि उस वक्त सिर्फ़ वोट की अहमियत व इफ़ादियत पर थोड़ी तकरीर करके वक्त मुकर्ररा पर जल्द से जल्द नमाज को ख़त्म करके जो हमारा मकसद है वोट देने की कोशिश करें। बल्कि नमाज जुमा से पहले इस तरह का काम हो, हमारे ज़िम्मेदारान, हमारे पार्टी की तरफ से या वोट नौजवानों की तरफ से, कि जुमा से पहले तकरीबन 60 से 70% हमारी वोटिंग हो जानी चाहिए। हमने अभी जो हालात देखे, अफसोस हुआ बिहार का इलेक्शन देखकर कि बिहार में इतनी बड़ी आबादी होते हुए जहाँ से सेकुलर का नारा बहुत ज़्यादा बुलंद किया जाता है, सिर्फ 47% वहाँ पर वोटिंग की गई है। तो ये हमारे सामने ये चीज़ें हैं। अभी भी कल ये ना हो कि लम्हों ने ख़ता की है, सदियों ने सज़ा पाई। अभी भी हमारे पास वक्त है। लोग खुलकर मज़हब के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क में मज़हब के नाम पर वोट नहीं लिया जाता, बल्कि इस मुल्क को चलाने के लिए, जमहूरियत को बाकी रखने के लिए, लोगों की मोहब्बत के लिए जमहूरियत के नाम पर वोट लिया जाता है। मुल्क हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन इस मुल्क के कानून को बनाने के लिए, इस मुल्क को आइन को बनाने के लिए जो बड़े मुदब्बिर थे, बड़े मुफक्किर, वो जमात थी जिन्होंने 2 साल से ज़्यादा का वक्फ़ा लेकर इस हिंदुस्तान के आइन को बनाया है। लेकिन लोग उस आइन को तार तार करने की कोशिश में हैं। तो मैं पूरी मुल्क के लोगों से गुजारिश करूँगा, वो बिलखुसूस उलमा से, ज़िम्मेदारान से, कि अभी भी हमारे पास वक्त है। अभी भी हमारे यहाँ जो उमरा को जाने की कसरत हो रही है और घूमने और फिरने की जो कसरत हो रही है, शायद आपको
मुस्तकबिल का आपको एहसास नहीं है कि मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या हो सकता है। अभी भी मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि मुसलमानों का रिजर्वेशन छीन कर जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है दूसरे लोगों को देने की बात कर रही है, और जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर दानिश अली साहब ने कुछ कहा अपनी कौम के लिए, तो चारों तरफ से उन पर किस तरह के जुमले कसे गए, लेकिन आज तक उस पर कोई मसला नहीं उठा है। तो आगे आने वाले दौर में किस तरह के हालात से हमको गुजरना होगा, तो अभी भी हमारे पास वक्त है। एक मरहला गुजर चुका है, इसके बाद मराहिल आने वाले हैं। मैं मुल्क के संजीदा लोगों से, सेकुलर लोगों से, मोहब्बत वाले लोगों से, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों, मैं जामिया बिलाल बेंगलोर के प्लेटफॉर्म से इन तमाम मौक़र उलमाए किराम और तंजीमात के ज़िम्मेदारान के ज़रिए से मैं आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि तमाम को इसमें जुट जाना है। हमारा वोट हमारा हक है, हमारी ताकत है, ये हमारी क़ुव्वत है। अगर इसको आज इस्तेमाल ना किया, अपनी गवाही को पेश ना किया, तो कल रब्बे कायनात की बारगाह में तमाम को जवाब देना है। ये गवाही देना आप पर ज़रूरी है, वोट का देना। अगर आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो अपने वोट का हक अदा करें, अपना वोट दें, अपनी ताकत को लगाएं। क्योंकि मैं तमाम तफसीलात में जाना नहीं चाहता, लेकिन आज इस तरह से खौफ और हरास किया जाता है, खौफ होता है कि मुल्क आगे जाके किस तरह का होगा। इस मुल्क में मुसलमानों ने 700-800 साल हुकूमत की, लेकिन कभी जुल्म नहीं किया, यहाँ पर नफ़रत के बीज नहीं बोए। 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की यहाँ पर आकर, और यहाँ हिंदुस्तानियों के तमाम मज़ाहिब को उन्होंने ग़ुलाम बना कर रख दिया, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, सबको 200 साल में ग़ुलाम बना दिया। और तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान करके इस मुल्क को आज़ाद किया है। लेकिन आज मुल्क की नफ़रतें बता रही हैं कि शायद कि मुल्क कहीं तीसरी तरफ ना चले जाए। इस मुल्क को बचाने के लिए हम तमाम की ज़िम्मेदारियाँ हैं। जो नफ़रत की बात करें, कभी भी आमीर उनके हक़ में आप रायदही का इस्तेमाल ना करें। जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो मुल्क की सलामती की बात करते हैं, जो रोज़गारी की बात करते हैं। अभी हमने देखा रियासत कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, 5 गारंटी का यहाँ पर ऐलान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल के अंदर 5 गारंटी पर काम किया है। तो ऐसा ही चाहिए कि जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, उन वादों को पूरा करना चाहिए। अगर जो वादे पूरे करते हैं तो उस पर एतमाद होना चाहिए। आज हमने कांग्रेस का एतमाद रियासत कर्नाटक में देखा है कि उन्होंने 5 गारंटी का वादा किया था, वादा पूरा कर दिया है। तो अब हमें देखना चाहिए पूरे मुल्क के लिए किस पार्टी ने क्या क्या वादे किए हैं। जिनके वादे खोखले हैं तो उनके वादे खोखले ही रहेंगे, और जिनके वादे मजबूत हैं उनके वादे मजबूत रहेंगे। तो आज भी मैं कहूँगा पूरे मुल्क के लोगों से, तमाम ही मज़ाहिब के लोगों से कि अभी खुल कर आएँ और एक अच्छी मजबूत हुकूमत अपने मुल्क के लिए लेकर आएँ। जो तमाम का जो फूलों का गुलदस्ता है, फिर मुल्क हमारा फूलों का गुलदस्ता बने, और आपस में हम इस त्यौहार को, यानी वोटिंग के दिन एक त्यौहार का दिन होना चाहिए। ईद के लिए जैसे हम सुबह से तैयार रहते हैं, इसी तरीके से वोट डालने वाले दिन भी हमें एक त्यौहार की तरह हमें निकलना चाहिए। इस तरह से हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क की सलामती होगी, और हमें इंशाअल्लाह हमारा जो जमहूरियत है हमारी वो बाकी रहेगी। जुम्मा के दिन भी कई हलकों में नमाज ये वोटिंग है, तो उन हलकों के ज़िम्मेदारान मसाजिद है 10-10 मिनट का अगर वक्फा रख लें अपनी नमन मसाजिद में तो वो एक। मैं यहाँ से ये भी ऐलान करूँगा कि हमारे यहाँ जुमा फ़र्ज़ है, लेकिन उर्दू खुतबा कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। और कोई एक वक्त आपने मुतय्यन कर लिया है तो मोहल्ले के लोग अपने अपने एतबार से 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट का फ़र्क, कि फ़लाँ मस्जिद में 1 बजे जुमा है तो वहाँ 1:05 पे हो जाए, कहीं 1:10 पे हो जाए, कहीं 1:15 पे हो जाए। इसी तरीक़े से मैं कहूँगा कि 2 बजे के अंदर अंदर या 1:45 बजे के अंदर अंदर पूरे हमारी मसाजिद में जुमा हो जाए, और जुमा के बाद जो बचे हुए लोग हैं तो उन पर ताकीद के साथ, यानी उनसे पूछा जाए। और ये काम तमाम ही मसाजिद के ज़िम्मेदारान, तंजीमात के ज़िम्मेदारान, आइमा और खुतबा का है, उस पर हम तमाम को मिल बैठ कर काम करना ज़रूरी है। मौलाना, लोग कहते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, एक ही वोट ताकत होती है।
जो ये कहते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, वो अपने काम पर चले गए या अपनी रियासत छोड़कर कहीं चले गए या उम्रा वगैरह के लिए चले गए, और वो कहेंगे कि यहाँ लाखों वोटों से इंसान जीतते हैं, लाखों वोटों का इलेक्शन होता है, तो एक ही वोट से हार होती है, एक ही वोट से जीत होती है, एक ही वोट से एमपी बनता है, और आपके एक एमपी से, एक वोट से मुल्क का प्रधानमंत्री बना करता है। एक वोट में इतनी ताकत है, तो आप अपना वोट, एक वोट है, लेकिन ये चाहें कि शरई तौर से आप वकील हैं, आप गवाह बनने के लिए आपको अल्लाह ने वो आपको मौका दिया है। अगर आप मौका गवाएंगे तो आप मुल्क के भी वफादार नहीं रहेंगे और अपने मजहब के भी वफादार नहीं रहेंगे। नौजवान के वास्ते हर नौजवान भूटान के पास खड़ को जो लिमिट्स थे उसके बाद रखा, हर नौजवान भी घर के पास जाकर बोल को करतो बुला लेना, नौजवान का रोल बहुत खास है। बिल्कुल आपने जो कहा, नौजवान देखिए हर चीज़ में नौजवान हमारे मुल्क की आन है, ये आन है, शान है, ये बान है। हर मौके पर नौजवानों की हमारी ज़रूरत है। तो आज भी मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि तुम्हारा वक्त, तुम्हारा यानी पूरा वक्त उस दिन इसी सोच और फिक्र में होना चाहिए कि कहाँ से वोट नहीं डाला गया, किस गली से वोट डालने के लिए नहीं आए हैं। ये नौजवानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नौजवान उस दिन पूरा का पूरा वक्त पोलिंग बूथ पर रहें, वहाँ पर देखें, वोटिंग लिस्ट को देखें, किसने वोट डाला है, किसने नहीं डाला है। पूरी कोशिश के साथ अगर हमारा नौजवान आगे बढ़ के आएगा तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। आपके अपने चैनल SBR News 24/7 में आइए नजर डालते हैं